अंजाम उसके हाथ है। तू आगाज करके देख, भीगे हुए परों से तो परवाज करके देख। तो आइए हम परवाज करते हैं। Our chapter number 1 of mathematics first is complex numbers. Dear students, in previous years we studied about set of real numbers, and we got a point that addition of two real numbers is again a real number. Subtraction of two real numbers is again a real number. Multiplication of two real numbers is again a real number. And division of two real numbers is again a real number. And we can represent set of real numbers, that means each and every real numbers on a real number line. And from centuries, our mathematician wants to find a number which can be multiplied by itself gives -1. And they want to find the solution of equations like this: x square plus 1 is equal to 0, x square plus 5 is equal to 0, x square plus 9 is equal to 0. That means they want to find x square is equal to -1. Solution of this equation means x square is equal to -5. That means we have to find a number whose square is -5, a number whose square is -1. Solution of this equation, that means x square is equal to -9. That means we have to find solution of this equation means we have to find value of x whose square is -9. And we studied in set of real numbers that there is no real number whose square is negative. We know that square of any positive real number is positive. Square of any negative real number is also positive. And square of 0 is 0. That means there is no real number whose square is negative. That means these equations are not having real solution. कोई रियल नंबर ऐसा नहीं मिलता जो इन इक्वेशन का सोल्यूशन हो, यानी उनका स्क्वायर और स्क्वायर जो है निगेटिव हो। कोई ऐसा रियल नंबर हमको नहीं मिलता। ऐसा कोई इस इक्वेशन का, इन तमाम इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। और हमारे मैथमेटिशियन ने इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, यानी ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो -1 मिल जाए। एंड वी नो दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। जहां चाह होती है वहां राह होती है। In 18th century, our Swiss mathematician Leonhard Euler, whose period is from 1707 to 1783, introduced a symbol I, which is a letter of Greek language, and its name is iota. And he told that I is square root of -1. Square root of -1. That means I square is equal to -1. And by means of this imaginary unit number इसको बोलते हैं I, which is square root of -1 को कहा जाता है imaginary unit number. And by means of this imaginary unit number, he defined the imaginary numbers. That Ki are imaginary numbers where K is not equal to 0 and K belongs to set of real numbers, where I is square root of -1. That means I square is equal to -1.
आई ये इमेजनरी नंबर है, जहां के रियल नंबर है, के नॉन जीरो रियल नंबर है, और आई इमेजनरी यूनिट नंबर है, दैट मीन्स आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आई का स्क्वायर -1 है। यानी आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 से किसी नॉन जीरो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर से उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। कॉम्प्लेक्स नंबर complex numbers a number of the form a plus ib denoted by small z where a and b belongs to set of real number and I is square root of -1, that means I square is equal to -1। इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। a प्लस आई बी, जहां a और b सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी रियल नंबर होगा, और i जो है वो इमेजिनरी यूनिट नंबर होगा, दैट मीन्स i इसके रूट ऑफ -1 होगा। इस टाइप का बनने वाला नंबर, इसको स्मॉल z से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। ए को हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलेंगे और उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और b जो है उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को आर ऑफ z ना लिखते हुए इसे और शॉर्टकट में आर ऑफ z भी लिखते हैं, पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और इसी तरीके से b जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको i ऑफ z भी लिखते हैं शॉर्टकट में, और उसे वही पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। एंड बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z आर रियल नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी दैट मीन्स रियल में उसका कोई यूज नहीं है। हम डे टू डे लाइफ में, रियल में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इनका कोई काम नहीं लगता। बस उस टाइप की जो इक्वेशंस थी जो कि हमने पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप के जो इक्वेशंस है, उन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने में हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे कि उसका स्क्वायर निगेटिव हो। इसके लिए यूलर ने एक इमेजिनरी यूनिट नंबर आई हमको दिया था, उससे हमने इमेजिनरी नंबर्स बनाया था। और इमेजिनरी नंबर्स ये रियल में नहीं होते, रियल में इनका कोई काम नहीं लगता हमें, ये रियल नंबर नहीं है। और कोई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एडिशन करे तो वो एडिशन एक्चुअल में एडिशन नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, इसीलिए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। और ए और बी यहां रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को आई से मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी नंबर बनाया जाता है। दैट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर में बी हमारा रियल नंबर ही होगा और ए तो प्योरली रियल नंबर है। और इन दोनों इमेजिनरी और रियल का एडिशन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां हमारा ए प्योरली रियल है, इसलिए उसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट कहा जाता है। और बी को जो कि रियल नंबर है मगर वो आई से मल्टीप्लाई होके इमेजिनरी नंबर बना रहा है, इसलिए इस बी रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये बी जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। उसको इस तरीके से हम बताते हैं कि z का ये रियल पार्ट है a, और हमारा b जो है इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का। यहां से हम ये बात भी नोट करें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z के रियल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 रहे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। और यहां से हम ये बात भी दिमाग में बिठा लें कि इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका रियल पार्ट 0 होता है।
अब अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हमारा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं और हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 0 प्लस आई बी। दैट मीन्स उसको हम लिखेंगे आई बी। दैट मीन्स जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। यहां से ये बात भी हम दिमाग में बिठा लें कि हर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए और रियल पार्ट नॉन जीरो रहे, आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए और रियल पार्ट नॉन जीरो रहे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखा जाएगा। और हम देख रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए और रियल पार्ट नॉन जीरो रहेगा तो वो आने वाला नंबर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। दैट मीन्स एवरी रियल नंबर, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब अगर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा और उसको 0 से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स रियल नंबर 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट 0 होता है। यानी हम दावा कर सकते हैं कि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो निगेटिव रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और 0 रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कोई भी रियल नंबर हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कहलाता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो हर आपका रियल नंबर वो चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो 0 हो, वो प्योरली रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कुछ ऐसे नंबर्स जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों रियल नंबर्स ए और बी वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू मैं 2 ले लूं और बी की वैल्यू -3 ले लूं तो ये -3 आए हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नहीं है और प्योरली इमेजिनरी नहीं है। अब नोट करें यहां 3 और 2 का माइनस नहीं होगा, या एडिशन अगर रहेगा तो एडिशन नहीं होगा। दैट मींस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है 4 + 5 आए तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 आए हम लिख लेंगे, इसको ऐसा नहीं कर सकते हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। और कोई रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिए 2 - 3 -1 -1 × i -i, हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। किसी कोई ये ना सोचे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर एक अलग नंबर है जो कि रियल में नहीं है, हमें रियल में इनका कोई काम नहीं लगता, ये इमेजिनरी नंबर है। और ये रियल नंबर है, यहां i जो हमारा है इमेजिनरी यूनिट नंबर है, ये ऐसा नंबर है कि उसका स्क्वायर -1 है। और रियल नंबर में कोई ऐसा रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होता कि उसका स्क्वायर -1 हो। दैट मीन्स वो नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। और ये इमेजिनरी नंबर और ये रियल नंबर दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये बाइनरी फॉर्म में लिखे जाएंगे। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि यहां इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये पूरा इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगा। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो इस बात को नोट करें। अब हम देख रहे हैं हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के एलिजिबल हो गए। हम डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से बताया जाता है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर को R से डिनोट किया जाता है,
वैसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट किया जाता है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सेट ऑफ numbers a plus ib where a and b belongs to set of real number and I is square root of -1, that means I square is equal to -1। और इस सेट के अंदर ऐसे रियल नंबर भी होंगे जो कि प्योरली रियल है, यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट b 0 होगा वो भी इसमें रहेंगे, यानी प्योरली रियल नंबर। और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें रहेंगे जो प्योरली इमेजिनरी है, जिनका रियल पार्ट a 0 होगा। और इस सेट में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहेंगे जो ना तो प्योरली रियल है ना तो प्योरली इमेजिनरी है, दैट मीन्स उनका a और b दोनों के दोनों नॉन जीरो है। तो इस सेट के अंदर आपका सेट ऑफ रियल नंबर भी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स यहां से हम ये बात दावे के साथ बोल सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये सेट ऑफ रियल नंबर आपका प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इंक्लूड है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर में कुछ ऐसे रियल आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो कि प्योरली रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं जो कि ना तो प्योरली रियल है ना तो प्योरली इमेजिनरी है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर के सारे नंबर से इसमें इंक्लूडेड होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ढेर सारे एक्स्ट्रा नंबर्स भी हैं जो इमेजिनरी भी हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है और प्योरली रियल भी नहीं है। तो हमने यहां से ये बात देखी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी नहीं है, प्योरली रियल नहीं है, सबके सब इस सेट में इंक्लूडेड है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशंस हम यहां सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे ऑपरेशन किया जाता है, इमेजिनरी नंबरों से कैसे खेला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे खेला जाता है, वो यहां पे हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। हम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। सबसे पहले